بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں اور اسم کی اقسام. سب سے پہلے ہم نے اس میں معرفہ پڑھا، اس کے بعد پھر ہم نے اس میں نکرہ پڑھا. اس میں نکرہ کی اقسام میں نے 3 بتائی آپ کو. اس میں مصدر، اس میں ذات یا جامد، اور تیسری قسم تھی اس میں مشتق. اس میں مصدر، اس میں ذات یا جامد کی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو خود کسی سے نہیں بنتا، نہ ہی کوئی اس سے اور اسم بنتا ہے. اس میں ذات یا جامد کہلاتا ہے. جامد کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا، سولid، اور ذات کا مطلب ہوتا ہے وجود، باڈی، جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. یعنی ہمارے جو 5 سینس ہیں ان سے ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ذات یا باڈی اپنے وجود رکھتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے. یا جامد، کوئی سالڈ ٹھوس چیز ہوتی ہے وہ جامد کہلاتی ہے. اس کی میں نے آپ کو 9 اقسام بتائی تھی. اپنی کاپی سب سے پہلے نکالیے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. اس کے بعد دوسری جو قسم پڑھی تھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں مصدر کے متعلق کہ مصدر کسے کہتے ہیں. اس میں مصدر وہ اسم جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے اسماء اور افعال بنتے ہیں. اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اس کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آخر میں نون الف نہ ہوتا. لیکن یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں یہ تو ذات یا وجود نہیں ہوتا، بلکہ ایک مصدر سے مراد یہ ہے کہ صادر ہونے کی جگہ، ویسے لغوی معنی اس کے صادر ہونے کی جگہ، لیکن اس میں مصدر اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو کاموں کا نام ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا نام ہوتا ہے. یہ کوئی وجود نہیں ہوتا، جس طرح میز ہے، کرسی ہے، گھر ہے، درخت ہے، بازار ہے، کوئی شخص ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے، وہ نہیں، بلکہ یہ کاموں کے نام کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں مصدر سے اسماء اور افعال بنتے ہیں. کی اقسام، پہلی بات ہم نے 3 کی اقسام پڑھی تھی. اس میں نکرہ کی، اس میں ذات یا جامد. نمبر 2 لکھتے جائیے میرے ساتھ ساتھ، اس میں مصدر. تیسری جو قسم ہے اس کی، اس میں مشتق. اس میں ذات سے جامد کے بارے میں دوبارہ جان لیجئے کہ وہ اسم جو خود کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی اور اس سے کوئی اسم بنتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اپنا الگ وجود رکھتا ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں اور چکھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی وجود یا ذات رکھتا ہے. اس کے بعد اس کی 9 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، وہ آپ نے لکھ لیا ہے. ہم اس میں مصدر کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ اس میں مصدر وہ اسم جو خود کسی سے نہیں بنتا بلکہ اس سے اسماء اور افعال بنتے ہیں، اور ہم اس سے اسماء بنا رہے تھے کہ کتنے اسماء بنتے ہیں. اس میں مصدر سے 6 طرح کے اسماء ہم نے بنانا سیکھے تھے. پہلی اس میں فاعل. نمبر 2 اس میں مفعول. نمبر 3 اس میں حاصل مصدر. اس میں معاوضہ. اس میں حالیہ. نمبر 6 اس میں صفت. اس میں مصدر سے جو اسم بنتا ہے وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے. یعنی مشتق کا مطلب ہوتا ہے اخذ کیا ہوا، ماخوذ.
مشتق عربی میں کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اخذ کیا ہوتا ہے، ماخوذ ہوتا ہے مصدر سے، وہ اس میں مصدر کہلاتا ہے، اس میں مشتق کہلاتا ہے. سوری، اب ہم اس کو بتائیں گے کہ مصدر سے کس طرح جو ہے وہ ہم مختلف اسماء بناتے ہیں. 6 طرح کے اسماء ہم بنائیں گے. پہلا ہے فاعل. فاعل کی 2 قسمیں ہیں. ایک فاعل وہ ہوتا ہے جو جملے میں ہوتا ہے، کچھ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے. جیسے حامد نے جوتے خریدے. اب اس جملے میں حامد فاعل ہے، لیکن فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے. اسم فاعل وہ اسم کہلاتا ہے جو مصدر سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں مصدری معنی پائے جاتے ہیں، وہ اس میں فاعل کہلاتے ہیں. اسم فاعل کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی. نمبر 1 اسم فاعل وہ اسم جو مصدر سے بنایا جاتا ہے فاعل کہلاتا ہے. پچھلی کلاس میں نے بتایا کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اس میں فاعل سماعی اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے اس میں فاعل قیاسی. اب 2 چیزیں سمجھ لیں، سماعی اور قیاسی. سماعی یعنی سنا سنایا، اہل زبان کا بنا بنایا، کہ وہ کسی کام کرنے والوں کو جو معنی دیتے ہیں وہ بنا بنایا کہلاتا ہے یا سماعی کہلاتا ہے. اور اس میں فاعل قیاسی یعنی ہم قیاس کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ آخر میں کوئی لائقہ لگا لیتے ہیں اور وہ اس میں فاعل قیاسی بن جاتا ہے. اس میں فاعل سماعی یعنی اہل زبان کا سنا سنایا جو فاعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس میں فاعل سماعی کہلاتا ہے. اب اس کو بھی پہلے ہم سماعی کو دیکھتے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاک سے ڈاکیا، یا مختلف لائن لگا کر بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں. مثلاً اب آپ دیکھیے کہ دار سے بنائیے تاجدار، دکاندار، زمیندار، اسی طرح کار، خدمتگار، پروردگار، طلبگار. یہاں دار سے اور بھی تاجدار، دکاندار، تھانے دار، چوکیدار، باز کوئی کام کرنے والا، مثلاً کبوتر باز، دھوکہ باز، جوا باز، دغا باز. طرح طرح کی جو ہے وہ ہم لائنیں لگا کر اس میں فائل بناتے ہیں. اور دوسرا قیاسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے آخر میں والا لگا دیتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے والا، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، دیکھنا سے دیکھنے والا، کھولنا سے کھولنے والا. یہاں ان
मुख्तलिफ लाइकें और मुख्तलिफ तब्दीलियां लाकर हम इसमें फाइल बना सकते हैं। अब आप देखिए हासिले मस्तर, इस्म हासिले मस्तर, यानी एक मस्तर से हम हासिले मस्तर, इसमें हासिले मस्तर कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी आप देखें कि मुख्तलिफ तब्दीलियां करते हैं। मसलन मस्तर है उठना, उठना ये एक काम का नाम है। ये याद रखिए कि मस्तर किसे कहते हैं, किसी भी काम के नाम को मस्तर कहा जाता है। तो उठना, उठना से इसम बनाइए, उठना यहाँ ऊपर काफी पर लिखिए, ऊपर मस्तर और यहाँ पे इसमें मस्तर। इसमें मस्तर कैसे बनेगा, उठना से उठान, उबालना, उबालना से उबाल, उड़ना, उड़ना से उड़ान, झुकना, झुकना से झुकाओ, थकना, थकना से थकन, रुकना से रुकावट, पढ़ना से पढ़ाई। तो ये हम मस्तर से हासिल कर रहे हैं सारे अस्मा, यानी जो अस्मा बन रहे हैं मस्तर से उनको मुश्तक कहा जाता है और ग्रामर की रूप से उसे इसमें हासिल मस्तर कहा जाएगा। इसमें हासिल मस्तर, इसम हासिल मस्तर, क्योंकि मस्तर से ये हासिल किया गया है, लिहाजा इसको इसमें हासिल मस्तर कहलाते हैं। इसी तरह आप मस्तर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए तो आप बनाते चले जाइए। मसलन आगे जाइए, तड़पना, तड़पना, तड़पना एक मस्तर है, इससे तड़प, मिलना, मेल जोल या मिलावट, गुजरना, गुजर, बेलचाना, लालच, मिलना, मिलाप, नाचना, नाच, लड़ना, लड़ाई। आपने देखा है कि इसमें हासिल मस्तर, यानी मस्तर से जो हासिल हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो इसमें हासिल मस्तर कहलाएगा। आपको दोबारा लिखवा दूं कि इसमें मुश्तक की कितनी अक़साम है। इसमें मुश्तक की
6 अक़साम मैंने बताई थी। इसमें बार बार इसको याद कीजिए, इसमें फाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हासिल मस्दर, इसमें मुआवजा, इसमें सिफ्त, इसमें हालिया। मैंने पिछली क्लास में आपको इनके बनाने के तरीके से सिखाए थे कि किस तरह बनाते हैं, फाइल किस तरह बनाते हैं, फाइल की दो समाई और कियासी, और फाइल के बाद मस्दर के आखिर में वाला लगा लेते हैं तो इसमें फाइल बन जाता है। जैसे लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, देखना से देखने वाला, सुनना से सुनने वाला। मफूल के आखिर में हुआ लगा लेते हैं, पढ़ना से पढ़ा हुआ, देखना से देखा हुआ, भागना से भागा हुआ। हासिल मस्दर अभी मैंने बताया कि रुकना से रुकावट, नाचना से नाच, पढ़ना से पढ़ाई, और घूमना, चढ़ना से चढ़ाई, खरीदना से खरीद, और देना से देन, और इसी तरह जांचना से जांच, जोड़ना से जोड़। तो ये हासिल मस्दर बनाते हैं, मुख्तलिफ इसमें लायके लगा देते हैं। मुआवजा, मुआवजा कहते हैं उजरत या मजदूरी। लिहाजा यहाँ अगर लिखना एक मस्दर है, लिखना, तो इससे हासिल मुआवजा क्या बनेगा या उसकी उजरत क्या होगी किसी को देंगे तो वो कहेंगे लिखाई। पढ़ना से पढ़ाई, बनाना से बनवाई। सिर्फ का जो आखिर में लायका लगाते हैं उसके आखिर में काबिल लगा देते हैं। लिखने के काबिल, पढ़ने के काबिल, सुनने के काबिल। और हालिया मस्दर के आखिर में ता हुआ लगा देने से इसमें हालिया बनता है। जैसे पढ़ना से पढ़ता हुआ, देखना से देखता हुआ, सोना से सोता हुआ, भागना से भागता हुआ। इस तरह हम इसमें हालिया बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कैफियत, इसमें कैफियत यानी किसी चीज की हालत। इसमें कैफियत जो है वो इसम जो किसी चीज की हालत को जाहिर करे, इसमें कैफियत कहलाता है। जो किसी चीज की हालत को जाहिर करे वो इसमें कैफियत कहलाता है। इसमें कैफियत कैसे बनता है? इसमें कैफियत किसी इसम या इसमें सिर्फ से बनता है। मुश्तक हासिल मस्दर से हम हासिल करते हैं, मस्दर से, और इसमें कैफियत किसी और इसम या इसमें सिर्फ से हासिल किया जाता है, उसे इसमें कैफियत कह जाते हैं। लिहाजा इसमें कैफियत और इसमें मुश्तक में फर्क है। क्या फर्क है? इसमें मुश्तक हमेशा मस्दर से बना होता है, उसमें मस्दर ही मैंने पाए जाते हैं, जबकि इसमें कैफियत किसी इसम या किसी इसमें सिर्फ से हासिल किया जाता है और उससे बनाया जाता है। इसमें कैफियत जो है वो मसलन मैं आपको आदमी से आदमियत, अब यहाँ इसमें कैफियत है इंसान से इंसानियत, हैवान, अब आप देखें हैवान से हैवानियत, लड़का, लड़कपन। यहां देखा है आपने, आदमी एक इसम है, इंसान एक इसम है,
हैवान एक इसम है, लड़का एक इसम है, और इससे हमने एक और इसम बना लिया और उसकी हालत बता दी, इसमें बताई जा रही है, कैफियत बताई जा रही है, लिहाजा इसको इसमें कैफियत कहते हैं। वो इसम जो किसी और इसम से बनता है या इसमें सिर्फ से बनता है वो इसमें कैफियत कहलाता है। इसी तरह बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्गी, आपको सिर्फ लिखें अच्छा, अच्छा से अच्छाई। अब ये अच्छाई है वो कैफियत है या हालत है किसी चीज की, अच्छाई। बूढ़ा, बूढ़ा सिर्फ है, ओल्ड बूढ़ा और बुढ़ापा। दोस्त, दोस्ती, जिस तरह आप इंग्लिश में बनाते हैं फ्रेंड, फ्रेंडशिप, बॉय, बॉयिश, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, अच्छा, गुड, गुडनेस, चौड़ा, चौड़ा। अब ये जो है सिर्फ है चौड़ाई, स्याह, स्याही, गोल, गोराई, बड़ा, बढ़ाई। आपने देखा है कि इसमें सिर्फ से हम इसमें कैफियत बनाते हैं और एक इसम से भी हम इसमें कैफियत बनाते हैं। तो इसमें कैफियत और इसमें मुश्तक में फर्क आपको नजर आ गया कि इसमें मुश्तक हमेशा मस्दर से हासिल किया जाता है और इसमें कैफियत किसी इसम या किसी सिर्फ से बनाया जाता है। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, मसलन और लिखें दुश्मन, दुश्मनी, मर्द, मर्दानगी। तो तरह तरह के आप जो है इससे एक नए अल्फाज बना सकते हैं, उससे अखज़ कर सकते हैं, माखूज कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अब एक लफ्ज़ है सुनना, सुनना से सुनने वाला। अब ये ग्रामर के रूप से कौन सा इसम है? इसी तरह दूसरा मैं एक इसम लिख रहा हूं, गरीब, गुर्बत। आप दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है कि सुनना, सुनना एक काम का नाम है, मस्दर है, उससे मैंने इसम बनाया सुनने वाला। और गरीब एक सिफ्त है, पुअर, क्वालिटी। यहाँ गरीब से गुर्बत बना है, तो दोनों में फर्क वाज़ेह हो गया कि ये मस्दर से जो बना हुआ है ये इसमें मुश्तक कहलाएगा, इसमें मुश्तक। और जबकि ये मैंने सिर्फ से बनाया है, लिहाजा ग्रामर की रूप से ये इसमें कैफियत कहलाएगा, कैफियत कहलाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, मैंने लिखा लफ्ज़ मीठा, स्वीट, मीठा। अब आप गौर कीजिए कि मीठा क्या चीज है? सिफ्त है, तो इससे जो इसम बनेगा मिठास, यहां देखा। इसी तरह फटा हुआ। अब यहां आप गौर करें दोनों में क्या फर्क है? फटा हुआ कैसे बना? फटना से फटा हुआ, फटना करके यहाँ पे मस्दर लिखे और यहाँ पे फटा हुआ लिखेंगे, फटा हुआ। अब इस पर गौर करें कि ये किससे बना है? ये मस्दर से बना है, तो लिहाजा इसको कहेंगे कि ये इसमें मुश्तक है, यानी मस्दर से बना हुआ जो इसमें होता है वो मुश्तक कहलाएगा।
और ये सिफ्त है, लिहाजा इससे ये इसम बन रहा है कि इसको इसमें कैफियत कहेंगे ग्रामर क्लू से। फटना से फटा हुआ, तो यहाँ आपने लिखना है कि इसमें मुश्तक, ठीक है, इसको कैफियत लिखेंगे क्योंकि किसी चीज की हालत को बताया जा रहा है। लिहाजा ये बनाने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि मुख्तलिफ लाहिके लगाकर आप उस लफ्ज की शक्ल सूरत तब्दील कर लेते हैं। जब शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है और नई चीज का इजाफा हो जाता है या लायका लगाते हैं सुफिक्स, तो फिर एक नया लफ्ज वजूद में आ जाता है। जब नया लफ्ज वजूद में आता है तो जाहिर है उसकी शक्ल सूरत भी तब्दील हो जाती है और उसके मानी में और उसकी बनावट में तब्दीली आ जाती है, मानी तब्दील हो जाते हैं। ये तो आज का हमारा सबक था। पुरानी जो राय थी कि इसमें मस्तर किसे कहते हैं, इसमें मुश्तक किसे कहते हैं और उसको बनाने के क्या क्या तरीके हैं। इसी तरह मैंने इसमें कैफियत के बारे में आपको बताया कि वो इसम जो किसी और इसम से या किसी इसमें सिर्फ से हासिल किया जाता है वो इसमें कैफियत कहलाता है।